1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। हम पढ़ेंगे हिब्रूज 4 चैप्टर 1 वर्स से 13 वर्स, जेरेमिया 41 चैप्टर, 42 चैप्टर, 43 चैप्टर। 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री 4 अध्याय 1 वचन से 13 वचन, यिर्मयाह की भविष्यवाणी की पुस्तक 41 अध्याय, 42 अध्याय, 43 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में BSI बाइबल में से। हमारी सहायता करो परमेश्वर के आत्मा। ये वचन केवल शब्द नहीं है, ये हमारे आत्मिक बलिदान है। अभी हमने रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में इसे सीखा। जब भी हम बाइबल रीडिंग कर रहे होंगे, हम आत्मा के अंदर से परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। ये चढ़ावा परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना है, एक बेहतरीन और उत्कृष्ट रीति से और पूरे सच्चाई के साथ, सत्यता के साथ, भले तरह से हम इसे पूरा कर पाए। हमारी मदद करो पवित्र आत्मा कि हमारा यह आत्मिक चढ़ावा परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो जाए। इसके अंदर से हमारी हर गलती, हर मुश्किलें, हर एक बातें जो परमेश्वर के सामने अशुद्ध ठहरती है, सब कुछ को हमारे अंदर से हटा दीजिए। हमें आत्मिक मन दीजिए ताकि हम ये आत्मिक बलिदान को परमेश्वर को ग्रहण योग्य करके चढ़ा सके हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए इस आत्मिक बलिदान को चढ़ाने में। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। इब्रानियों की पत्री हिब्रूज 4 चैप्टर 1 वर्स से 13 वर्स पढ़ेंगे हम। हिब्रूज 4 चैप्टर 1 वर्स से 13 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। The Christians rest to be obtained by faith, the power of God's word. First verse say, let us therefore fear lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. For we which have believed do enter into rest, as he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. For he spake in a certain place of the 7th day on this wise, and God did rest the 7th day from all his works. And in this place again, if they shall enter into my rest, saying therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached enter not in because of unbelief. Again, he limiteth a certain day, saying in David, today, after so long a time, as it is said, today, if ye will hear his voice, harden not your hearts. For Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? There remaineth therefore a rest to the people of God, for he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit,
and of the joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and opened into the eyes of him with whom we have to do. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. हमें सिर्फ 13th वचन तक पढ़ना है. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do. इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय पहले वचन से 13 वचन तक पढ़ेंगे DSI बाइबल में से. इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 1 से 13 वचन तक. परमेश्वर के लोगों का विश्राम. DSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं पहले वचन से. इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए. ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा. परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे. यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कही यों कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटाकर के विश्राम किया. और इस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे. तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया. इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो. क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती. अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है. अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है. बहुत प्यारा वचन है ये. ओके, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे ना, तो उसका असर ये 12 वचन रहता है. ओके, तो आपके अंदर कोई प्राइवेसी और कोई सीक्रेट बात नहीं रह सकती है. जब आप 12 वचन को पढ़ने शुरू कर, मतलब 12 वचन का असर आप समझेंगे ना, तो आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के कारण क्या हो जाता है मालूम है, सब कुछ पर्दाफाश हो जाता है. ओके, सब कुछ एक्सपोज हो जाता है, एक्सपोज्ड हो जाता है. आमीन. कुछ भी छुपा नहीं रहता है, आप सब कुछ समझ सकते हैं किसके अंदर क्या है क्या नहीं, क्या छुपा के आया है मन के अंदर, क्या रख के गया है, क्या कहाँ पे क्या उसने झटका है, फाड़ा है, फटका है, सब कुछ
सारी भेद जो लोग छुप छुप के करते हैं, हाँ, सब कुछ जो रहस्य के काम जो लोग बताना नहीं चाहते, किसके लिए क्या हानि करके रखा है, हाँ, जो बताना नहीं चाहते हैं हमने किसके बारे में क्या करके रखा है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, हाँ, आने वाले समय में क्या आपको मिलने वाला है, क्या आपसे छीन लिया जाएगा, क्या लोगों ने आपके बारे में करके रखा है, क्या आपके लिए परमेश्वर ने लाके रखा है आपके पास। ये सब जो बातें हैं, ये जहाँ आप हमारी फिजिकल आंखें देख नहीं सकती है, उस जगह में से हमारा परमेश्वर वचन पढ़ने वाले आंखों से हमको दिखाता है। हालेलुया। तो वचन पढ़ने वाली आंखें हम में होना बेहद ज़रूरी है। समझ में आया? आप वचन पढ़ते हैं तो ये 12 वचन आपके लिए काम कर रहा होता है और आप बचा लिए जाते हैं, आप आशीष को प्राप्त करने के लिए तेज बना लिए जाते हैं, आप परमेश्वर को समझने के लिए अपने मन को खोल दिए गए होते हैं। बहुत कुछ हो जाता है, ओके, बहुत कुछ जो आपको छुप छुप के आपके लिए कोई घात लगा के बैठा होगा, उसकी भी हालत ख़राब कर देता है। जब आप लगातार बाइबल रीडिंग को करते जाएंगे तो उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये हथियार है और जब भी हम बाइबल रीडिंग करते हैं तो ये हथियार काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। और उसका क्या काम है ये 12 वचन बताता है। समझ में आया? तो आप व्यर्थ नहीं समझना है जब हम रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ को कर रहे कंप्लीट, ये व्यर्थ नहीं है। ये तो पहले आज हमने देखा है रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में बताया, ये आत्मिक बलिदान हो गया है ना। और फिर दूसरी बात क्या है, परमेश्वर के सम्मुख हमारे सारे भेद खुले पड़ जाते हैं और हमारे बारे में किसी ने कुछ भेद करके रखा होगा, रहस्य करके रखा होगा, उसका भी निपट लेना हो जाता है फिर वचन पढ़ते पढ़ते। समझ में आया? तो बड़ी जिम्मेदारी के काम है ये सब करना, हमने इसे बहुत खूबी के साथ करना है। 13 वचन से देखिए क्या है 13 वचन, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। ओके, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहना है। आपके लिए कौन क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, कितने हद तक उसके पास क्या है, क्या रखा है, क्या निकाला है, क्या किया है, सब कुछ वो जितना भी वो कोई शाना नहीं बन सकता है, कोई नहीं। अगर आप बाइबल रीडिंग करने वाले इंसान है रेगुलर, कोई शाना नहीं बन सकता है आपके सामने। समझ में आया? क्योंकि ये हथियार चलता है ओके और जितना बाइबल रीडिंग करोगे उतना ये हथियार चलता जाएगा। जैसे हम एक कांच के ऊपर से अगर समझो धूल हटानी है तो हम उसको एक बार पोंछ कर देखते हैं, नहीं निकला, दूसरी बार और फिर बाद में रगड़ रगड़ कर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हम काम करते जाते हैं, तब वो क्लीन हुआ तब हम उसका पीछा छोड़ते हैं। अगर क्लीन नहीं हुआ तो हम हार जाते हैं, हम सोचते हैं कुछ और तरीका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये साफ तो हो ही नहीं रहा है ना, या फिर हमको उसको निकाल देना पड़ता है, डिस्कार्ड कर देना पड़ता है क्योंकि वो साफ हो नहीं रहा है। वैसा ही ये बाइबल रीडिंग, आत्मिक बलिदान सब है। हम जो भी कर रहे हैं ये हथियार है और ये हथियार अपनी अपनी जगह से अपने अपने समय में काम करते हैं जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम आराधना करते हैं तो हथियार चला रहे होते हैं, हम बाइबल रीडिंग कर रहे हैं तो हथियार चला रहे होते हैं, हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हथियार चला रहे होते हैं। ये सारे हथियार काम कर रहे होते हैं और समझो इतना सब करने के बावजूद भी हमारा काम बन नहीं रहा है, हमारी मुश्किल हल नहीं हो रही है, हमारे आने वाला समय बदल नहीं रहा है, तो फिर हम थक जाते हैं क्योंकि ये सब करने में शक्ति जोड़ देते हैं हम। ओके, अपनी सारी ताकत को हम दे देते हैं और हम ये आशा रखते हैं कि अंत का फल हमें अच्छा मिलेगा। लेकिन जब अंत का फल हमें दुखदाई मिलता है तब हमारी आशा टूट जाती है और हमको लगता है कुछ तो कमी है और भी, कि हमने कुछ और तरीका इस्तेमाल करना है। ये नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, जाने दो ये तो होगा नहीं हमसे, ऐसे बोलकर हम छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं।
ओके, तो इस प्रकार का ये आत्मिक बलिदान जो परमेश्वर का वचन है वो क्या काम करता है, ये 12 वचन में हमको मालूम पड़ा। हालेलुया। और ये सब कुछ 13 वचन में बताया, कुछ भी आपके सामने छुपा नहीं रहेगा, वो खुलकर रहेगा और आप उसका तमाशा देख कर रहेंगे। हालेलुया। और उसके बाद का समय आपके भलाई में ही रहेगा, आपका कोई कुछ कहीं नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ खुल्लम खुल्ला पर्दाफाश करता है, और जो पर्दाफाश कर दिया वो उधेड़ दिया जाता है। ठीक है, आपके हाथों में दे दिया जाता है, आपने उसका पूरा सत्यानाश कर देना है प्रार्थना करके। सब कुछ जो भी परमेश्वर ने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सब कुछ उखाड़ कर अपनी ज़मीनें मशागत कर लेना है, सब कुछ ठीक ठाक कर लेना है, क्योंकि अब आपको दिखाई देने लगा किधर क्या क्या है। ख़त्म करने का बात को परमेश्वर ने जैसा बोला है वैसे आपने फटाफट करके अपने आप को शुद्ध कर लेना है। यही तो वचन का काम है कि ये हमें धोता है, नहलाता है, हमको ये वचन पानी की तरह हमको ये साफ करता है। हालेलुया। तो इतना अच्छा अवसर हम परमेश्वर का उठा रहे हैं, तो आप इसका आनंद उठाना है और आपके लाइफ बदलते जाएंगे, क्योंकि ये हथियार है और काम करता है। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आपने ये भेद रहस्य हमको दिया। आपका धन्यवाद करते, इसके आगे का समय आपके हाथों में देते। पवित्र आत्मा, जैसा आपने समझाया सिखाया हम उसको अपने मन में बिठाए रखते हैं और उसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए अपने आप को सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा, हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, हमें ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए, नासरी यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।